سینیٹر تاج محمد افریدی نے کہا کہ پی ٹی آئی کا بیرونی مداخلت سے رجیم چینج کا بیانیہ دم توڑ چکا۔ حکومت آئینی اور جمہوری طریقہ کار کے تحت تبدیل ہوئی۔ لندن میں 92 نیوز کے بیورو چیف غلام حسین ایوان سے بات کرتے ہوئے پاکستانی سیاست کے حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ بالکل میرے ساتھ اس وقت لندن میں سینیٹر تاج محمد افریدی صاحب موجود ہیں، جو کہ سینٹ کے اندر جنہوں نے بڑا اپنا اہم کردار ادا کیا۔ انہیں سے پوچھتے ہیں کہ جب سے یہ پاکستان کے اندر رجیم چینج ہوئی ہے اس وقت یہ پاکستان کے اس وقت سیاسی حالات کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ آپ کی موجودگی ہمارے ساتھ یہاں پہ۔ ابھی تو پاکستان مشکل میں ہے، لیکن امید ہے جو رجیم میں چینج آ گیا اس سے کوئی تبدیلی آئے گا، کیونکہ جو بوجھ حکومت برداشت کر رہا تھا وہ عوام پہ فارورڈ ہو رہا ہے، تو اس سے کوئی نہ کوئی ریلیکسیشن مل جائے گا۔ دنیا کی جو ہمارے اوپر IMF کی اور ان کی چیزیں تھے جو ہمارے اوپر نظر نہیں ڈال رہے تھے، تو حکومت کی پالیسی کی وجہ سے امید ہے وہ لوگ ہمارے ساتھ کوآپریشن کریں گے۔ یہ سب دنیا کے ساتھ کر رہا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی۔ اچھا، آپ آزاد حیثیت سے سینیٹر بنے تھے، لیکن پاکستان کے اندر اس وقت دو بیانیاں چل رہے ہیں۔ ایک یہ چل رہا ہے کہ امریکہ نے گورنمنٹ چینج کروائی، اور دوسرا یہ چل رہا ہے کہ جمہوری طریقے سے اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کو چینج کیا۔ آپ کس موقف کو سمجھتے کہتے ہیں؟ میرا خیال میں جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چینجز آئے ہوئے ہیں امریکہ کے، اس کے اوپر بالکل میرے نظر میرے سوچ کے مطابق غلط بات کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو چینجز آئے ہوا ہے بالکل آئینی اور جمہوری طریقے سے۔ جو لوگ ان پہ کانفیڈنٹ کرتے تھے آج وہ چینج ہو گیا، ان سے سپورٹ ختم کر دیا۔ اپوزیشن جو تھا وہ ابھی حکومتی بینچوں میں آ گیا، حکومت بن گیا ان کا۔ تو میرے خیال میں جو بیانیہ ہے ان کا وہ غلط ہے۔ کسی پہ ہمارے ریلیشن دنیا کے اوپر خراب ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاکستانی وہاں پہ ہوتا ہے، امریکہ میں، یورپ میں، لندن میں، ان کے اوپر اس چیزوں کا اثرات پڑتے ہیں۔ تو جو تبدیلی آ چکا ہے، حکومت چینج ہوا ہے، بالکل آئین اور جمہوری طریقے سے ہوا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ سینٹ کا ہمیشہ سے پاکستان کی قانون سازی میں اہم کردار رہا ہے، ہمیشہ سے۔ ہم نے دیکھا کہ سینٹ کے جب چیئرمین کے الیکشن ہوئے اس وقت بھی کنٹروورسی آئی، کچھ ووٹنگ کے حوالے سے بھی ہوا کہ یہ ووٹ کاؤنٹ غلط ہوئے ہیں۔ آپ تو چشمگیر ہوا ہے، کیا دیکھا ہے؟ میرے خیال میں جو بھی ہوا ہے وہاں پہ اس میجورٹی کو کلیت میں ثابت کیا، اور کلیت جو میجورٹی میں آ گیا وہ طریقہ کار غلط تھا۔ میرا جو وقت تھا اس وقت کی بات تھی، میں یہ میسج پہنچا چکا تھا حکومت کو، اس کے عوام، اس کے ہمارے جو کلیگ تھے، لیکن اس وقت انہوں نے سیاسی شعور سے فیصلہ نہیں کیا جو حکومت میں تھے، اور جو اس کے ساتھ میجورٹی بھی نہیں تھی، وہ لوگ جیت گئے تھے، اور جو یہاں پہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ غلط طریقہ ہے میرے نظر میں، جو کچھ بھی ہوا ہے، اور جو آگے فیوچر میں بھی اگر اسی طریقے سے ہو رہا تھا، تمام کا اعتماد جو پارلیمنٹ پہ ہے اور خاص کر سینٹ پہ ہے وہ اٹھ جائے گا۔ آپ جو کبھی پاکستان سے آئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں جو حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ایک مومنٹم قائم ہوا تھا اور لوگ سمجھ رہے تھے بہت زیادہ عوام جو ہے وہ PTI کے ساتھ باہر نکل آئی ہے، وہ ڈائی ڈاؤن نظر آ رہا؟ میرے خیال میں جیسا ابھی مہنگائی ہے، اس کا ایگزامپل یہی ہے۔ یہ جو PTI کا جو ورکر ہے، جو ایک لمیٹڈ ورکر ہے، جو صرف اور صرف جلسے جلوسوں والے ہیں، وہ نہ ووٹ دینے والے ہیں نہ ووٹ دیتے ہیں، وہ لوگ بھی تک گیا، ان کو بھی پتہ لگا کہ ہمارا خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ رانگ سائڈ پہ جا رہا ہے۔ خاص کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کا کلیش ہے، باہر دنیا کے ساتھ بھی ہمارے نظام میں مداخلت ہو رہا ہے۔ تو عوام ابھی جو ہے اب نظر آ رہا ہے، اس کے پاس کوئی جلسہ جلوس میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو حقیقت کا پتہ چل گیا کہ خان صاحب نے جو سمجھتا تھا، جو بیان کرتا تھا، اس کو پورا نہیں اترا ہے۔ پاکستان سپورٹس گڈز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ذوالفقار ملک کی لندن میں پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کے سپورٹس کے سامان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پاکستانی سپورٹس کا سامان امپورٹ کرنے والے تاجروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ پریس کانفرنس کا اہتمام انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کارپوریشن نے کیا۔ لارڈ واجد، معروف اینکر علی رضا اور IBCC کے تمام عہدیدار اس موقع پر موجود تھے۔ مشرقی لندن سے سلیم صابری رپورٹ کریں گے۔ پاکستان میں سپورٹس انڈسٹری کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے پاکستان بزنس سینٹر لندن میں انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کارپوریشن کی طرف سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی چیئرمین پاکستان سپورٹس گڈز ایسوسی ایشن ذوالفقار ملک تھے۔ تقریب میں لارڈ واجد خان، IBPC کے چیئرمین رضوان سلہریہ، وائس چیئرمین عامر خان، جنرل سیکرٹری عاصم یوسف، چودھری منظور حسین، حافظ توصیف، شفیق قریشی اور لندن کی دیگر کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے پاکستان میں تیار ہونے والے
स्पोर्ट्स के सामान की क्वालिटी और दुनिया भर में इस्तेमाल के हवाले से ब्रीफिंग दी। आसिम यूसुफ ने तकरीब से खिताब करते हुए इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कारपोरेशन के अगराज और मकासद बयान किए। उन्होंने कहा कि तंजीम का बुनियादी मकसद पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारत को फरोग देना है। वाइस चेयरमैन आमिर खान ने शुरा को बताया कि IBPC का प्लेटफॉर्म न सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि लोगों के दूसरे मसाइल के हल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तकरीब से खिताब करते हुए तंजीम के चेयरमैन रिजवान सुलेहरिया ने कहा कि पाकिस्तान में कारोबार के बेशुमार मौके मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ चंद काली भेड़ों से पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। IBPC पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारत के लिए एक पुल का किरदार अदा कर रही है। और इनके जो जितने भी ताजर हैं पाकिस्तान से आना चाहेंगे, वी वांट टू वर्क विद अस एंड आवर मेंबर्स ऑब्वियसली, एंड ऑन द अदर हैंड वी वांट देम टू open a new market in UK. Obviously they are working, but we want them to explore new avenues as well on the other hand. चेयरमैन पाकिस्तान स्पोर्ट्स गुड्स एसोसिएशन जुल्फकार मलिक ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो बहुत जल्द IBPC के साथ एक मेमोरेंडम साइन करेंगे, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान दरपेश कारोबारी मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के सामान को कदर की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तान का बना हुआ फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचों में इस्तेमाल हो रहा है, जबकि पाकिस्तान की हॉकी स्टिक्स और क्रिकेट बैट पूरी दुनिया के खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट की बात करूं तो आपका इंग्लैंड जो है ना क्रिकेट का घर है और पाकिस्तान इसका सेकंड होम है, तो क्रिकेट के हिसाब से पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसके बाद अगर देखा जाए पाकिस्तान स्पोर्ट्स गुड एसोसिएशन का रोल क्या है, तो हमारा रोल ये है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम अपने डेलीगेशन बाहर भेजते हैं। हाँ, और हमारी प्रोडक्ट जितनी है वो बन के बाहर जाती है, लोकल भी इस्तेमाल होती है, इंग्लैंड में आती है, साउथ अफ्रीका में जाती है, जहाँ जहाँ क्रिकेट और हॉकी खेली जाती है, जहाँ जहाँ फुटबॉल खेला जाता है। देखा जाए तो फुटबॉल इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे जो खेला जा रहा है वो सियालकोट को ये आज़ाद हासिल है कि सियालकोट का बना हुआ है। इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कारपोरेशन के चेयरमैन रिजवान सुलेहरिया और दीगर शख्सियात ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ यूं इजहार ख्याल किया। मकसद हमारा ये है कि हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को न सिर्फ बैनुल अक़वामी जो मंडियाँ उस तक लेके आएँ, बल्कि हम चाहते हैं कि जो हमारे अपने पाकिस्तानी ताजर हैं उनको हर वक्त मुश्किलात का सामना है, वो यहाँ पे एक जो है उनका कनेक्शन बन सके, एक नेटवर्किंग हो सके। अभी तो इंशाल्लाह मलिक साहब आए, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के दूसरे अहदेदार भी आएंगे, और दूसरा हमने उनको ये कह दिया है कि हमारा जो ऑफिस है इनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हाजिर है, जब ये चाहें यहाँ पे आए, इनके मेंबर्स आए, इसको यूज़ करें, मीटिंग्स करें। जो कम्युनिटी है इसको इकट्ठा किया जाए, पाकिस्तान और UK के दरमियान जो रवाबत है उनको बेटर किया जाए, उसकी काविश के लिए हमने आज मलिक साहब को यहाँ बुलाया, इनकी मेहरबानी यहाँ पे आए हैं। मकसद ये है कि जो स्पोर्ट्स गुड्स एसोसिएशन पाकिस्तान है उनका हम इंशाल्लाह मेमोरी भी साइन करेंगे। मकसद ये है कि पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लाया जाए। हमारा जो मेन मकसद है, हमने वहाँ भी बात की थी कि ये हमने एक ब्रिज का किरदार अदा करना है इनके साथ मिलके। कुछ वहाँ के जो लोग हैं उनको भी मसले मसाइल होते हैं, कुछ यहाँ के जो लोग होते हैं इनको भी मसले। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जैसे क्वालिटी है ना, क्वालिटी को इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जैसे पहली दफ़ा चीज़ आए इसी तरह नेक्स्ट ऑर्डर, उसके बाद जो ऑर्डर आते हैं वैसे ही आने चाहिए। तो इंशाल्लाह हम भरपूर इनकी हमायत भी करेंगे और इनको सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। IBPC इस वक्त इंशाल्लाह ताला तीसरी दफ़ा ये टूर्नामेंट करवाने जा रही है। अगस्त में भी हम चेयरमैन के तक जब हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई तो हम डेट फाइनल करके आपको बता देंगे, और ये इस दफ़ा भी हम सबसे बड़ा टूर्नामेंट करेंगे। और किसी भी आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इतना अच्छा और मुनज़्ज़म टूर्नामेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक नहीं करवाया। IBPC का हमेशा से ये कोशिश यही है कि पाकिस्तानी मसनूआत को इधर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया जाए। जैसा कि आप सबको पता है कि UK जो है वो क्रिकेट का और फुटबॉल का हब है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स एसोसिएशन को यहाँ पे मदऊ करने का मकसद यही था कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स गुड्स जो हैं उनको बेहतर तौर पर इंट्रोड्यूस यहाँ पे करवाया जा सके। तकरीब के आखिर में मेहमानों को IBPC की एजाजी मेंबरशिप दी गई और बैज भी लगाए गए। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम में शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए फंड रेजिंग करने वाली फलाही तंजीमों के लिए खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली तंजीमों के नुमाइंदों को तारीफी इसनाद से नवाजा गया। इस मौके पर बेघर अफराद के लिए काम करने वाली मारूफ फलाही तंजीम फिडोनीटो की सरगर्मियों को बेहद सराहा गया। इजलास में शरीक फलाही तंजीमों ने आइंदा भी मुश्तरका तौर पर काम करने का आज़म जाहिर किया। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में।
शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए मुश्तरका तौर पर फंड रेजिंग करने वाली बरतानिया की फलाही तंजीमों की हौसला अफजाई के लिए बर्मिंघम में खुसूसी तकरीब हुई, जिसमें कई तंजीमों के नुमाइंदे और कारकुन शरीक हुए। इजलास का एहतमाम फलाही तंजीम पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी और होमलेस के लिए काम करने वाली तंजीम फीडो नीडो की जानिब से किया गया। तकरीब में शुरका ने मुख्तलिफ फलाही मंसूबों के हवाले से तबादला ख्याल किया। फीडो नीडो की बेघर अफराद के लिए कोशिशों को सराहा गया। इस मौके पर फलाही तंजीमों की शानदार कारकर्दगी का एतराफ करते हुए उन्हें तारीफी इसनाद से नवाजा गया। इस मौके पर शुरका को फीडो नीडो की मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा भी करवाया गया। शुरका का डॉक्यूमेंट्री के जरिए फीडो नीडो के काम के तरीक़ाकार और इसकी फलाही खिदमात से इस्तेफादा करने वाले बेघर अफराद के हवाले से आगाह किया गया। इस मौके पर फीडो नीडो के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राफे अहमद ने ब्रीफिंग के दौरान कोविड के दौरान किए जाने वाले कामों की तफसीलात शेयर की और बताया कि उन्होंने किस तरह आवाम की खिदमत की, जिस पर दीगर फलाही तंजीमों ने भी मुश्तरका साथ चलने का अज़्म किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी की चेयरपर्सन ज़रीना खान, फीडो नीडो की राफे अहमद और दीगर ने पजीराई पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हम लोगों ने शौकत खानम के लिए फंड रेजर किया था, जो हमने कोलैबोरेट किया था फीडो नीडो के साथ, और बहुत अच्छा इवेंट हुआ था। और इसमें हम लोगों ने 22,640 रेज किए थे, जो हमने शौकत खानम को डोनेट किए हैं। Today I'm here from Fido Nido. We're joined by the lovely team from Pack Fusion UK. So we did collaborate with them a while ago on a fundraiser for Shaukat Khanum Hospital. We raised over £22,000. And today we received a certificate awarded to us by Pack Fusion and their team, just to acknowledge our efforts and our hard work, and we hope to continue raising more money for a good cause. पाक यूके फ्यूजन की तरफ से मैं बात कर रही हूँ, और हमारी टीम और फीडो नीडो की टीम ने मिलकर शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए एक प्रोग्राम किया था, जो फंड रेजिंग के लिए था, और टोटल वो फंड रेजिंग हॉस्पिटल के लिए थी। और हमें ये लगा कि हॉस्पिटल में जो काम हो रहा है, गरीबों की मदद हो रही है, हम भी इसमें शामिल हों। Today we're here to present Fido Nido with a certificate which is being given from Shaukat Khanum. And coming here and looking at all the good work that Fido Nido does has inspired us to do more work. We've just had a tour of the amazing work and the amazing place they are running. शुरका का कहना है कि अगर तमाम फलाही तंजीमें मुश्तरका तौर पर अवाम की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए काम करें तो काफ़ी हद तक हम अवामी मुश्किलात को हल कर सकते हैं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने जर्मनी में मुनक़्क़दा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2022 के फ़ाते पाकिस्तानी तालिब इल्म मोइज़ुल्लाह बेग से सफारत खाने में मुलाकात की और उन्हें उनकी कामयाबी पर दाद और मुबारकबाद पेश की। तफसीलात के मुताबिक स्क्रैबल चैंपियनशिप अपने नाम करने वाले होनहार पाकिस्तानी नौजवान मोइज़ बेग इससे पहले भी स्क्रैबल के कई बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके और आजकल जर्मनी में बसिलसिला आला तालीम मुकीम है। मुलाकात के दौरान सफीर पाकिस्तान ने मोइज़ बेग को तारीफी सनद से नवाजा और उनके मुस्तक़बिल में होने वाली मुकाबलों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सफीर पाकिस्तान ने इस अज़्म का भी इयादा किया कि सफारत खाना नौजवानों को खुसूसन तलबा की हौसला अफजाई हर मुमकिन अंदाज से जारी रखेगा। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान ने नौजवानों को पैगाम दिया कि वो सेहतमंद और मुस्बत गैर निसाबी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ब्रसेल्स में सफीर पाकिस्तान असद मजीद खान ने बेल्जियम के बादशाह को बाज़ाब्ता तौर पर अपनी सफारती असनाद पेश की। ब्रसेल्स के शाही महल में होने वाली पुरवकार तकरीब में बेल्जियम में तैनात पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर असद मजीद खान ने बादशाह फिलिप लेवोपोल्ड लुइस मैरी को असनाद पेश की। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान ने बेल्जियम के बादशाह को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर और वजीर आजम की नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। पाकिस्तान और बेल्जियम के दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर देते हुए सफीर पाकिस्तान ने पाकिस्तान और बेल्जियम के दरमियान मजीद मजबूत, मुतहरिक और मुतनौع शराकतदारी की तामीर के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया। जवाब में बेल्जियम के बादशाह ने पाकिस्तान के आवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजाह में नेक्सजन टैलेंट शो का इनाकाद किया गया, जिसमें नई नस्ल के टैलेंट को सामने लाने के लिए आर्ट और कैलीग्राफी का मुकाबला मुनक्किद किया गया। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान हसन अफजल खान और सदर पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजाह चौधरी खालिद हुसैन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मजीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में नेक्स्ट जेन टैलेंट शो सजाया गया। आर्ट और कैलीग्राफी के मुकाबले मुनक्कद किए गए, जिनमें अमारात भर से बच्चों ने भरपूर शिरकत की। शो में म्यूजिकल प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया। गुलकारा नबीहा, शाहद अली सोनू, साबरी सिस्टर्स और जहूर अहमद लोहार ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से हाजरीन के दिल मोह लिए। कमसन आर्टिस्ट इमामा फखर ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से महफिल को चार चांद लगा दिए और हाजरीन ने इमामा के टैलेंट को खूब सराहा और दिल खोल कर दाद दी। सदर पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा खालिद हुसैन चौधरी की पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए उनकी खिदमात को सराहते हुए सियासी और समाजी रहनुमा मियां मुनीर हांस के हमरा उन्हें शील्ड से नवाजा गया। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब हसन अफजल खान को भी शील्ड पेश की गई। तकरीब में मियां मुनीर हांस, फखर सदीकी, सईद सलीम अख्तर, उमर बलोच समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, शारजा, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब के अल कसीम रीजन से कौमी एयरलाइन की इस्लामाबाद और मुल्तान के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ों का आगाज हो गया। PIA की बराह रास्त परवाज़ों से हज़ारों पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा। परवाज़ें शुरू होने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने खुशी का इजहार किया है। तफसीलात के लिए देखते हैं रियाद से उमैर अली की ये रिपोर्ट। सऊदी अरब में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब के अल कसीम रीजन से कौमी एयरलाइन की इस्लामाबाद और मुल्तान के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ों का आगाज हो गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद और मदीना मुनव्वरा के दरमियान में वाक़ अल कसीम रीजन में हजारों पाकिस्तानी वर्कर्स मौजूद हैं, जिनकी सहूलत के लिए 2020 में PIA ने सऊदी जनरल एविएशन अथॉरिटी से हफ्तावार 2 परवाज़ों की मंजूरी ली, मगर कोविड-19 के बायस अमल दरामद न हो सका। लेकिन अब हालात बेहतर होते ही PIA इंतजामिया ने परवाज़ें शुरू करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मुनक्किदा तकरीब में PIA इंतजामिया ने तफसीलात से आगाह किया। फ्लाइट्स की रवानगी से कबल इफ्तिताही तकरीब में कौमी एयरलाइन के कंट्री हेड जान मोहम्मद का कहना था कि सऊदी अथॉरिटीज के साथ अल कसीम रीजन से तीसरी फ्लाइट का इजरा भी जल्दी मुमकिन बना लिया जाएगा। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि हम कसीम से दोबारा ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं और ये शेड्यूल ऑपरेशन है विद परमिशन ऑफ ढाका। 3 स्लॉट्स हमने अप्रूव कराई हैं। करंटली हम 2 फ्लाइटें ऑपरेट कर रहे हैं, एक मुल्तान के लिए और एक इस्लामाबाद के लिए भी की। इंशाल्लाह जिस तरह का रिस्पांस 2 फ्लाइटों पे आया है, तीसरी फ्लाइट भी हम इंशाल्लाह सितंबर से जैसे सीजन शुरू होता है एक मुल्तान पे और लगा देंगे। तकरीब में मैनेजर PIA रियाज फहीम रजा और सेल्स मैनेजर शेख अरशद भी मौजूद थे। मुल्तान से अल कसीम के लिए कौमी एयरलाइन की पहली परवाज पहुंचने पर इंतजामिया की जानिब से वाटर कैनन सैल्यूट भी पेश किया गया। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों ने फ्लाइट्स के इजरा पर खुशी का इजहार किया और कहा कि इससे कबल उन्हें सैकड़ों मील सफर करके मदीना मुनव्वरा या रियाद से फ्लाइट्स लेना पड़ती थी, अब उन्हें बेहद आसानी होगी। अल कसीम से मदीना जा रहे हैं, अपना मुल्तान जा रहे हैं, बहुत खुशी हुई है जी। डायरेक्ट फ्लाइट PIA की मिली है। खुशी की बात है जो है ना, फ्लाइट जो है ना कसीम से जा रही है इस्लामाबाद के लिए। ये हमारी दुनिया ख्वाहिश थी जो पूरी हुई है और इंशाअल्लाह आगे भी उम्मीद है कि ये कंटिन्यूस चलेगी। तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ साथ मकामी सऊदी शहरी भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद। डायरेक्टर हज मक्का मुकरमा साजिद मंजूर असदी का कहना है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी आज़मीन हज को मुश्किलात पर मबनी सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस पुरानी हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर आयाम हज की वीडियो शेयर करके मनफी प्रोपेगेंडे के अलावा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आयाम हज में अभी 8 दिन बाकी हैं। लोगों को चाहिए कि वो समाजी राब्तों की वेबसाइट पर मनफी खबरों पर यकीन न करें। अपने वीडियो मैसेज में डायरेक्टर हज ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर कुछ मनगढ़ंत और पुरानी वीडियोस शेयर की जा रही हैं, जिससे ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि इस साल के हज के अंदर हाजियों के साथ अरफात के मैदान में या मिना के मैदान में उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है। आज यकम ज़िलहज्जा 1443 हिजरी और 30 जून 2022 है। अभी हज शुरू होने में 9 दिन बाकी हैं और इंशाअल्लाह 9 दिन के बाद हमारे हाजी अरफात के मैदान में हज को अदा करने के लिए जाएंगे। पाकिस्तान हज मिशन ने मक्का मुकरमा के अंदर भी, मदीना मुनव्वरा के अंदर भी खाने के, ट्रांसपोर्ट के और उसके बाद रहाइश के आला इंतज़ामात किए हैं, जिसके हाजी साहबान भी मुतरफ़ हैं और कोई थर्ड पार्टी भी उनसे वो पूछ सकती है कि कैसे अरेंजमेंट्स हैं। तो इंशाअल्लाह जो मुशायर के मैदान में हज के दिनों में भी कोविड के लिहाज से सऊदी हुकूमत ने और उसके बाद पाकिस्तान हज मिशन ने भी उनका साथ देते हुए उन असूलों के और उन प्रोटोकॉल्स के तहत इंतज़ामात किए हैं, जिसके तहत हाजी के लिए भी आसानी होगी और इंशाअल्लाह इस साल का हज वो पुराने सालों से हज के अंदर उससे भी अच्छी सहूलियात दी जाएंगी। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर वो ऐसी वीडियोज़ को देखते हैं जिसका इस हज के साथ कोई तल्लुक़ नहीं, या पुरानी वीडियोज़ जो शेयर की जा रही हैं और उसको इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि इस हज में किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, तो उन चीज़ों से जो है ना वो उसको फर्दर शेयर करने से एतराज़ करें।
सऊदी अरब में पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम के अरकान का कहना है कि पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग देकर मईशत को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाया जा सकता है और दोनों ममालिक में सरमायाकारी के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। मज़ीद अहवाल उमैर अली की इस रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम के सालाना इजलास में कारोबारी अफराद ने शिरकत की और पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम के सदर मुनीर शाद का कहना था कि गुज़श्ता 3 सालों के दौरान हमने सऊदी अरब समेत मिडल ईस्ट और दुनिया के दीगर ममालिक में पाकिस्तानी कारोबारी कंपनीज को यकजान किया, जिससे दो तरफा कारोबार के फ़रोग के अलावा उनके दरमियान ताउन और तजर्बात की बदौलत पाकिस्तानियों को फ़वाइद हासिल हुए। पाकिस्तान से जितने लोग हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है जो लाइक माइंडेड वो चाहते हैं सऊदी में बिज़नेस करना है, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी यहाँ आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, तो वो भी यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी तरह हम बाकी जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको कहते हैं, हम कह रहे हैं कि प्लीज़ आएँ, यहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट है क्योंकि अभी हर चीज़ लीगलाइज हो गई है। तो इसी तरह पाकिस्तानी और सऊदी अरब की दोस्ती बढ़ रही है और हम इसके ऊपर दिन रात काम कर रहे हैं। शुरका का कहना था कि सऊदी सरमायाकारों समेत पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं जिनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, और इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज मौजूद हैं जो सऊदी अरब की मार्केट में कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ावा दे सकती हैं। इस अमर की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के और सऊदी अरब के मुआशी ताल्लुकात मजबूत और मुस्तहकम हों। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ जो ट्रेड वॉल्यूम है वो $500 बिलियन का है, जो कि बहुत कम है। और अगर आप देखें कि पाकिस्तान जो इंपोर्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया से वो $4 बिलियन का ऑयल है एनुअली, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, उसमें ट्रेड में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो हमें ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि हम यहाँ पे सऊदी अरब जो हमारा दूसरा घर है, यहाँ पे हम उस प्रोडक्ट को वाक़अतन उसको मार्केट कर सकते हैं। एज ए फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन हमने अभी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लॉन्च किया पाकिस्तान में, जो मेरी ओनरशिप में है, और बाकी जो दोस्त हैं उनको भी मैं ये कहूँगा कि वो आएँ, लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर, पाकिस्तान की इकोनॉमी को प्रमोट करें, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करें, क्योंकि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ और कॉटेज इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की जो नेशनल इकोनॉमी है उसके लिए बैकबोन का दर्जा रखती है, और उसको प्रमोट करना अभी वक्त की ज़रूरत है। और उसमें मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें फैसिलिटेट किया जाए। इजलास में हाफिज कैसर सईद, डॉक्टर इमरान, राशिद महमूद, डॉक्टर शाहिद, शहजाद सुबहानी, नाफे हुसैन, वलीद खालिद, इस्माइल खान और दीगर ने इजहार ख्याल किया। इजलास के आखिर में PAF की 3री सालगिरह का केक भी काटा गया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा की सकाफत को उजागर करने के लिए अल-बल्द में मौजूद कदीम इमारतों को लोगों के लिए खोल दिया गया, जिसको देखकर लोग दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। जद्दा सीजन में म्यूजिकल प्रोग्रामों का भी एहतमाम किया गया और इसके साथ साथ भूत बंगला, रिवायती मौसीकी और रक्स करती फनकारों ने हाजरीन के दिल मोह लिए। मजीद अहवाल अदील रियाज की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में जद्दा सीजन 2 की रंगीनियां जारी हैं, जिसमें मकामी और गैर मुल्की ज़ायरीन को जद्दा का तारीखी पस मंजर दिखाने के लिए अल-बल्द की तारीखी इमारतों को खोला गया, जिससे ज़ायरीन को जद्दा शहर के एक एक हिस्से में महफूज अनमोल सकाफती नवादरात और तारीख से मुतारिफ होने का मौका मिल रहा। ओल्ड जद्दा का इलाका तारीखी और कदीम इमारतों से मालामाल है, जिनमें बाज़ इमारतें तो 400 साल पुरानी हैं, जिनमें दारुल नसीम और दारुल जमजूम है। दारुल नसीम में एक म्यूजियम कायम किया गया है, जिसमें उस दौर में ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली चीज़ें रखी गई हैं। जद्दा की फसील और इसके तारीखी मोहल्ले अल-मज़लूम, अल-शाम, अल-यमन और अल-बहर भी काबिल ज़िक्र हैं, जबकि यहाँ की कदीम मसाजिद का भी एक अलग ही मकाम है, जिनमें उस्मान बिन अफ़ान, अशाफी, अल-बाशा, आकाश, अल-ममार और हनफी जामिया मस्जिद नुमाया हैं। जद्दा के बारौनक बाजार और इसमें नादर अशिया से सजी दुकानें काबिल दीद हैं। तारीखी इमारतों में बने कैफे जहाँ ज़ायरीन और रिवायती खानों और कहवे से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इस तारीखी इलाके में हर रोज़ कोई न कोई अवामी प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है, जिसमें लोगों को जद्दा शहर की तारीखी के बारे में बताया जाता है। जद्दा तारीख में रिवायती मौसीकी और फ्रेम में रक्स करती फनकारों का भी एहतमाम किया गया, जिससे ज़ायरीन खूब महजूज हुए। अपनी तर्ज के इस अनोखे फ्रेम रक्स ने हाजरीन में काफ़ी मकबूलियत हासिल की है। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा, सऊदी अरब। रूस ने कनाडा के 43 शहरियों का मुल्क में दाखिला ममनू कर दिया।
रूस वजारत खारजा के कनाडा की पाबंदियों के जवाब में 43 कैनेडियन शहरियों को पाबंदियों की फहरिस्त में दाखिल करके उनके रूस में दाखिले बंद कर दिए हैं। रूस वजारत खारजा ने सियासी हुक्काम समेत 43 कैनेडियन शहरों के रूस में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। वजारत खारजा के जारी करदा तहरीरी बयान में कनाडा के माह मई में रूसी कंपनियों के आला सतही मुंतजमीन और उनके खानदान के अफराद पर पाबंदियां लगाने की याद दहानी करवाई गई और कहा गया कि इस फैसले के जवाब में 43 कैनेडियन शहरियों को पाबंदियों की फहरिस्त में दाखिल करके उनका रूस में दाखिला बंद कर दिया गया है। मज़कूरा अफराद की फहरिस्त जारी कर दी गई है। हिज़्ब इक़्तिदार लिबरल पार्टी के नुमाइंदे, वफाकी और इलाकाई शोबों के हुक्काम, स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के मुलाजमीन और सियासी माहिरीन शामिल हैं। रूस ने 21 अप्रैल को अमरीका की नायब सदर कमाला हैरिस और मीटा के मुंतज़म आला मार्क ज़ुकरबर्ग समेत 29 अमरीकी और 61 कैनेडियन शहरों का रूस में दाखिला ममनू करार दे दिया था। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।